participle is used. Present participle is first form plus ing. Past participle is third form, and perfect participle is having plus third form. Now you must know that first present participle is used as adjective and adverb both. Past participle is used only as adjective, and perfect participle is used as only adverb. I have taught you earlier. Now I am going to tell how it can work. First of all, we will know what two finite verbs are in the simple sentences. The first set of sentences is Shankar raised his gun, he shot the tiger. Here two finite verbs, one is raised and one is shot. We will take it, the finite, and we will make raised into non-finite participle. You have to know the work has been done earlier or the work is what happens at the same time. As soon as Shankar did this work, he did this work. So we will use here present participle raising his gun. Shankar shot the tiger. Come again to the topic. Here two subjects, Shankar and he. He is used for Shankar. So he will not be used in the simple sentence. In simple sentence, we use only one finite verb and one subject. So he is gone and Shankar has become the main subject. Next sentence, the boy saw the danger, he turned behind. There is also two finite verbs, saw and turned. The boy and he are the same. If we use in Hindi कि लड़के ने खतरा देखा, वो मुड़ा, खतरे को एकदम देखते ही लड़का मुड़ गया। इस काम के साथ के एकदम होते ही ये वाला काम हो गया। In such a situation, we will use present participle in first person time. See the danger, आगे की के स्थान पर जब वो आएगा, the boy turned behind. Next, a tiger was hungry, he killed a bullock. This sentence can be made simple using many rules. First, we will take present participle. सीता भूखा था, उसने एक बैल को मार दिया। भूखा होने पर तो बाद का प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा being. Being hungry, a tiger killed a bullock. नेक्स्ट पर चलते हैं। He completed his work, he left the office. उसने अपना काम समाप्त किया, उसने ऑफिस छोड़ दिया। यहाँ पर आप ध्यान दें, this work has been done completely. Then it happened. Next, if this work and this work are not joined, so we will use perfect participle having completed his work. He left the office. Next चलते हैं, Sini found the book was gone. Sini जहाँ where
load. There you can see that there is already a non-finite verb in the form of load, that is past participle. This past participle is used as adjective, as you know very well that adjective is used before the noun. This sentence occurs only to tell the quality of book. The book was known. If we use load before book, the sentence is simple. Sydney found the lost book. Clear? यहाँ ये past participle आ गया. He tired content, he was badly wounded. यहाँ पर भी आपके पास ऑलरेडी past participle है wounded. और ध्यान रहे ये हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, ये हमारा एडवर्ब है. अगर ऐसा हमें एडवर्ब मिले तो हम उस एडवर्ब को हटाएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? We saw a badly wounded soldier. नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं. He had a coat, it was shattered. कोट के लिए आया है और कोट की क्वालिटी बताने के लिए shattered शब्द आया है. ये वर्ड जो है लिंकिंग वर्ब है, हमारे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का, ही जोड़ने का काम करती है. अगर हम इसे हटाते तो भी कोई बात नहीं होगी. यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब है, ध्यान दो ये नॉन फाइनाइट है. अगर मैं इस पैटर्न को, क्योंकि जो ये एडजेक्टिव है, इस पैटर्न को कोट से पहले लगा दूं तो हमारा सेंटेंस सिंपल बन जाएगा. आई हैड ए पैटर्न कोट. The traveler was wearing his hat by the roadside to rest. Traveler was wearing और next में set. तो यहाँ पर भी यही वाला रूल फॉलो हो रहा है कि यात्री थका हुआ था, वो सड़क के किनारे आराम करने के लिए बैठ गया. तो यहाँ पर बाद का प्रेजेंट पार्टिसिपल कन्वर्ट करेंगे बी. Being weary, the traveler sat by the roadside to rest. Next sentence चलते हैं. He was tired of play, he sat down to rest. बिल्कुल उसी तरह से बात का क्या हो गया? बी. आगे सेंटेंस आप ये टायर्ड है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है, ऐसे ही आ जाएगा. बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले. अब हमारा सब्जेक्ट शी और शी एक ही है, शी आ गया. शी अगर यहाँ पर सीधा होता तो हम सीधा लेते. आपको मालूम होना चाहिए कि एक नाउन और एक प्रोनाउन में हम प्रीफरेंस नाउन को देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह प्रोनाउन है, तो फिर शी आएगा. शी सैट डाउन to rest. Next चलते हैं. I saw a dead body was covered with a white cloth. मैंने यहाँ पर भी था और was covered. बाद में भी हम देखें ये फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट है. ऑलरेडी आपके पास नॉन फाइनाइट इन्होंने दे रखा है. तो हम क्या और ये किसके ये जो कवर्ड विद वाइट क्लॉथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज. देखिए यहाँ भी हमने यूज किया था गेटर को, यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पर भी ये पास्ट पार्टिसिपल है. यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस को देखें. ये हमारा सिंगल वर्ड है और ये हमारा कई शब्दों से मिलकर बना है. इसको बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज और इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव. अगर हमारा एडजेक्टिव होता है तो हमारे नाउन से पहले आता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव और फ्रेज होता है तो वो नाउन के बाद आता है. तो कैसे बनाएंगे? आई सा अ डेड बॉडी. अब इसके बाद आएगा कवर्ड
a white cloth. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. मोना क्लीन her room, she went to bath. मोना ने अपना कमरा साफ किया, वो नहाने चली गई. आप देख रहे हैं दो वर्ड में, एक क्लीन है और एक वेट है, लेकिन क्लीन और वेट दोनों अलग अलग वर्ड हैं. ये काम पूर्ण रूप से खत्म हो गया, उसके बाद उसने दूसरा काम शुरू किया है. जब एक काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं. हैवी क्लीन हर रूम. मोना went to bath. मेरे विचार से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया. पार्टिसिपल का जो चैप्टर है, चाहे वो प्रेजेंट है या पास्ट है, परफेक्ट है, वो क्लियर हो गया होगा. मैंने एक्सरसाइज दी थी आपको, तो मुझे लग रहा था आपसे नहीं होंगी, क्योंकि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है करने का. जिनसे थोड़ा टफ चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान से देखें, एक एक सेंटेंस सीखें और फिर जहाँ भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे कंसल्ट करें.